Good morning, children. So let's start with the Tiger King from your book Vistas, chapter 2, The Tiger King by Kalki. So before starting the chapter, first we have to go to know about the author. Okay, Ramaswamy Iyer Krishnamurthy, 9th September 1899 to 5th December 1954, better known by his pen name Kalki, was a Tamil writer, journalist, poet, critic, and Indian independence activist. His writings include over 120 short stories, 10 novellas, 5 novels, 3 historical romances, editorial and political writings, and hundreds of film and music reviews. Kalki Krishnamurthy received the Sangeet Kalishikmani Award conferred on him by the Indian Fine Arts Society in 1953. What do you mean by novellas? So this is all about the author, and he wrote all these writings. And novellas. Novellas means it is longer than a story and but shorter than novels. Okay, and it the word count between 15,000 to 40,000 words is to be written in novellas. Okay, so this is about the author. Now about the story, what about the story is the Tiger King is story is about the king of Pratibhanpuram. In next page, this is about our story, the Tiger King. Okay, the Tiger King is a story about the brave Maharaja of Pratibhanpuram, who was also known as the Tiger King. It was predicted that he will become the greatest warrior of all time, and he will eventually be killed by a tiger. The king had successfully killed 99 tigers, but he was asked to be careful of the 100th tiger. He eventually gets killed by a tiger, but the manner of his death is quite interesting. So what do you come to know about this? That there's a story about a Tiger King. Who is the Tiger King? Tiger King is the king of Maharaja of Pratibhanpuram. Pratibhanpuram में एक महाराजा हैं जिनको कि टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है, एंड वॉज ऑल्सो नोन एज द टाइगर किंग. ओके, एक बार ऐसा प्रेडिक्ट किया गया, ऐसा उनके बारे में बोला गया कि जो ही विल बिकम द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ ऑल टाइम, एंड इवेंचुअली एक ना एक दिन किसी टाइगर के थ्रू मारे जाएंगे, उन्हें किल कर दिया जाएगा, एक टाइगर उन्हें मार देगा एक दिन. एंड द किंग हैड सक्सेसफुली किल, लेकिन जो किंग है वो सक्सेसफुली 99 टाइगर्स को ऑलरेडी मार चुके हैं. उनको कोई एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट सम टाइगर हैज किल्ड that tiger king, and but for this if he killed 100 tigers, then only he can save himself. एंड ही ऑलरेडी किल 99 टाइगर्स, वो ऑलरेडी मार चुके होते हैं एज एस्ट्रोलॉजिस्ट प्रेडिक्शन के बाद. बट ही वॉज आस्क्ड टू बी केयरफुल, लेकिन उन्हें 100 टाइगर, अभी भी एक टाइगर बाकी है, 100 टाइगर, उससे बचने के लिए उससे केयरफुल रहने को कहा जाता है कि शायद ऐसा नहीं हो कि 99 के बाद में 100 वाला ही उनके लिए हार्मफुल हो जाए और उनकी लाइफ जो है एंड हो सकती है उससे. एंड इवेंचुअली गेट्स किल्ड बाय टाइगर, बट और इवेंचुअली होता यही है कि 100 टाइगर के से ही उनकी डेथ होती है. 100 टाइगर, लास्ट टाइगर जो होता है वही उनकी जान ले लेता है. और कैसे क्या होता है, व्हाट हैपेंस, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर, एंड इट इज़ वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट दिस स्टोरी. सो वी हैव टू स्टार्ट आवर चैप्टर. So the story revolves around the Maharaja of Pratibhanpuram, Jilani Jung Bahadur, who is also known as the Tiger King. कई नामों से उन्हें जाना जाता था प्रतिभनपुरम में, जिसमें एक नाम भी उनका ये दिया गया था, जिलानी जंग बहादुर. Soon after he was born, the astrologers predicted that one day the tiger would grow up to be a great warrior, but he would have to meet his death. एक बार जब भी इनकी डेथ होगी तो वो किसी टाइगर की वजह से होगी, ऐसा कुछ एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्ट करते हैं. एज द एस्ट्रोलॉजर्स अटर्ड दीज वर्ड्स, द 10-day-old child said that all those who are meant to die someday. लेकिन जैसे ही जिस वक्त ये
प्रेडिक्शन या एस्ट्रोलॉजर जो प्रेडिक्ट करते हैं, भविष्यवाणी ऐसी करते हैं उनको लेकर, उस वक्त वो जो महाराजा होते हैं वो 10 डेज़ के होते हैं, 10 डेज ईयर ओल्ड चाइल्ड, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा होता है जिस वक्त ये एस्ट्रोलॉजर उनके बारे में इस तरह का कुछ बताते हैं। एंड बट ये सुनकर वो छोटा सा 10 डेज़ का बच्चा जो है अनबिलीवेबल वे में ही इज़ गोइंग टू स्पीक आउट दैट हर कोई एक ना एक दिन मरेगा और हर कोई हर डेथ सबकी आनी, सबकी डेथ एक ना एक दिन सबकी डेथ आती है। ओके, डेथ इज़ इनएविटेबल, इसका कोई एंड नहीं है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, इट इज़ नॉट कंट्रोलेबल। तो डेथ तो एक ना एक दिन सबकी होगी किसी न किसी रीज़न से, तो शायद मेरा रीज़न भी यही होगा। बट ही विश टू नो द कॉज ऑफ हिज डेथ, और वो अपना रीज़न भी जानना चाहते हैं कि अगर डेथ की होनी है तो कैसे होगी मेरी डेथ। द चीफ एस्ट्रोलॉजर वॉज awestruck at the fact that the 10-day-old जंग बहादुर didn't only speak but also raised an intelligent question। और ये एस्ट्रोलॉजर जो इस बच्चे की 10 डेज़ के बच्चे की बात सुनकर, जो कि टाइगर किंग हैं, उस वक्त उनका बॉर्न हुआ था, तभी उनके लिए प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि उनकी डेथ एक टाइगर की वजह से होगी। और ये सिर्फ उनके बोलने से वो शॉक्ड तो थे, बट ऑल्सो उन्होंने जो एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन रेज किया था कि डेथ तो एक न एक दिन सबकी आनी है, तो इस तरह से ये सुनकर वो एस्ट्रोलॉजर्स बिकम शॉक्ड। देन व्हाट हैपेंड, द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड that he was born in the hour of bull. The bull and the tiger are enemies, therefore his death would come from a tiger. After hearing this prophecy, Jang Bahadur was not intimidated. Instead he declared, "Let tigers beware." The crown prince grew taller and stronger with each passing day. No other miracle took place in his childhood other than the initial one. At the age of 20, the state came into his hands, and when the astrologer's prediction came to the Maharaja's ears, he started hunting tigers as an act of self-defense. He was extremely delighted to kill his first tiger. Now what happened? The chief astrologer said that he was born in the, अब chief astrologer ये उन्हें क्लियर करते हैं कि टाइगर ही क्यों उनके डेथ का रीज़न बनेगा। ठीक है, सो क्यों बनेगा, क्योंकि दिस किंग वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल। आवर ऑफ बुल मीन्स बुल इज़ द जॉडिक साइन, यू नो जॉडिक साइन मीन्स राशि जो हमारी जैसे होती है, एक्वेरियस, बुल, ओके, एरीज एंड लियो। सो इन दिस वे देर इज़ इन बुल जॉडिक साइन ही वॉज बॉर्न। और बुल और इनका जो टाइगर आर द बुल और टाइगर जो है दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एनिमीज होते हैं, इसलिए देयरफॉर हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर। आफ्टर हियरिंग दिस प्रोफेसी, प्रोफेसी मीन्स भविष्यवाणी जो एस्ट्रोलॉजर्स ने की थी उनके बारे में, जब वो सिर्फ 10 दिन के थे, तो ये प्रोफेसी सुनकर जंग बहादुर वॉज नॉट इंटिमिडेटेड, इंस्टेड ही डिक्लेयर्ड, और ये सुनकर भी वो घबराए नहीं, डरे नहीं, ही डिक्लेयर दैट लेट्स टाइगर्स बीवेयर। तो फिर अब टाइगर्स जो हैं वो सावधान हो जाएं कि टाइगर्स अब अपने आप को बचाने की तैयारी कर लें। इंस्टेड ऑफ दिस ही जस्ट वॉर्न द टाइगर्स। द क्राउन प्रिंस ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर विथ ईच पासिंग डे। अब रोज़ हर एक दिन क्राउन प्रिंस जो थे 10 डेज के चाइल्ड से वो धीरे धीरे बड़े होते गए, एंड नो अदर, लेकिन ऐसा कुछ भी उनके साथ उनकी लाइफ चाइल्डहुड में उनका कोई भी ऐसा मिरेकल नहीं हुआ जो कि जैसा कि उनके इनिशियल स्टेज में जो व्हेन ही वाज ओनली ऑफ 10 डेज ओल्ड चाइल्ड, तब उनके साथ जो हुआ था एस्ट्रोलॉजर्स के थ्रू जो उनके प्रेडिक्शंस उनके लिए की गई थी, इसके अलावा उनके साथ ऐसा चाइल्डहुड में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। एंड एट द एज ऑफ 20 व्हेन ही बिकम यंगर, द स्टेट केम इन टू हिज हैंड्स। जब उनके हाथ में सारा स्टेट उनके हाथ में आ गया था, उनका ही वॉज रूलिंग ओवर देयर ऑन दैट स्टेट। एंड व्हेन द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शंस केम टू द महाराजाज ईयर्स, जब वो बड़े हुए और उन तक ये बात फिर से उन तक ये, जब 10 डेज़ के थे तब ये बात उनके साथ में हुई थी, और उस वक्त उन्होंने एक 10 दिन के बच्चे ने अपने खुद के मुंह से ये बात बोली थी कि डेथ तो सबकी आनी है, लेकिन मैं अपनी डेथ का कारण जानना चाहता हूँ। और जब उन्हें कारण बताया तो वो बच्चे ने बोला कि लेट्स टाइगर्स बीवेयर। तो फिर अब टाइगर्स जो हैं वो सावधान हो जाएं, वो उससे डरें।
ठीक है। सो लेट्स टाइगर बिहेवियर। अब जब वो 20 ईयर्स के हो गए हैं तो वे फिर से ये बात उनके पास में घूम फिर के फिर से वो बात उनके पास आती है एंड स्टार्टेड हंटिंग टाइगर्स एज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। और इस तरह तब से उन्होंने, जब उन्हें फिर से ये बात पता चलती है तो अपने सेल्फ डिफेंस में लग जाते हैं। एंड ही वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड, वो बहुत हैप्पी, बहुत खुश होते हैं। डिलाइटेड मीन्स हैप्पी टू किल हिज। और जब वो सबसे अपना फर्स्ट टाइगर को किल कर देते हैं तो ये जानकर वो बहुत खुश होते हैं कि 100 में से उन्होंने एक टाइगर को तो ऑलरेडी ही किल्ड। ओके, व्हाट हैपन नेक्स्ट? हाउएवर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर वॉर्न हिम दैट ही मे किल 99 टाइगर्स। लेकिन स्टेट में जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो कहते हैं कि अभी भी आपको 99 टाइगर्स मारने हैं, सिर्फ एक टाइगर के किल होने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बट ही मस्ट बी अवेयर ऑफ द 100 टाइगर। और हो सकता है लास्ट 99 को किल करने के बाद जो लास्ट वन जो है 100 टाइगर, वो भी आपके डेथ का कारण बन सकता है। एंड द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। ये सुनकर क्योंकि उसको अपना जो एम है, उसको अपना मिशन जो है 100 टाइगर्स का वो कंप्लीट करना है और 100 टाइगर्स महाराजा के हाथों से ही किल होने चाहिए, तो इसलिए वो अपने स्टेट में, पूरे अपने स्टेट में, अपने किंगडम में वो बैन लगा देते हैं कि महाराजा के अलावा और कोई भी हंटिंग नहीं करेगा, टाइगर हंटिंग नहीं करेगा। द महाराजा हैड ओनली वन गोल एट दैट पॉइंट एंड ही वोड टू अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स। और वो ये बोल लेते हैं, मीन्स ओथ लेते हैं, ऐसी कसम खाते हैं कि अब वो और किसी भी मैटर पे ध्यान नहीं देंगे ओनली आफ्टर। और वो अगर ध्यान देंगे भी तो सिर्फ तब जब वो सारे ओनली आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स, जब तक वो पूरे 100 टाइगर्स को किल नहीं कर दें वो किसी और मैटर में डिस्कस नहीं करेंगे। ही फेस्ड अ लॉट ऑफ डेंजर्स वाइल हंटिंग द टाइगर्स। और कई प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं ये 100 टाइगर मिशन पूरा करने में, बट ही ऑलवेज मैनेज टू बी victorious. But he was also Maharaja, a king, so he is full of victorious. And once the Maharaja almost lost his throne because of his obsession. Okay, obsession means he was just thinking about that killing of 100 tigers. और उस वजह से वो अपनी थ्रोन मीन्स द किंग्स चेयर, सिंहासन जो होता है दैट इज थ्रोन, उसके बारे में भी वो भूल गए थे कि ही वॉज अ किंग। उन्हें सिर्फ याद था तो सिर्फ इतना कि ही हैज़ टू किल 100 टाइगर्स। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। नाउ वन डे व्हाट हैपन, a high ranking British officer came to visit that kingdom. Which kingdom? Pratibandpuram. Okay, this is the story seen in Pratibandpuram, in the state of Pratibandpuram. एक बार वहाँ पे एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर वहाँ आते हैं विजिट करने एंड ही वॉज वेरी इवन फॉन्डर ऑफ हंटिंग। उन्हें हंटिंग करने का बहुत शौक होता है एंड बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स, उनके साथ फोटोग्राफी करना टाइगर्स, डेड टाइगर्स के साथ, उनकी स्किन्स के साथ। एंड ही शूट विजिटेड प्रतिबंधपुरम। इस वजह से वो प्रतिबंधपुरम आते हैं। व्हाट हैपन देन, हाउ ही स्टॉप दैट high ranking British officer. He wished to hunt the tigers in Pratibandpuram but the Maharaja refused to cooperate. Okay, अब वो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर जो हैं वो प्रतिबंधपुरम में हंटिंग के लिए आते हैं, बट महाराजा उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं, रोक देते हैं, रिफ्यूज टू कॉपरेट, वो उन्हें कॉपरेट नहीं करते हैं। एंड इवन व्हेन द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी इन्फॉर्म्ड द महाराजा that the British officer only wanted a photograph of him holding the gun and standing over the tiger's carcass. Okay, carcass means carcass is a dead body of animal. तो यहाँ तक कि जब जो ब्रिटिश ऑफिसर के जो सेक्रेटरी होते हैं वो ऑलरेडी महाराजा को इन्फॉर्म कर चुके होते हैं कि ही डोंट वांट टू किल द टाइगर बट ही जस्ट वांट टू टेक अ फोटोग्राफ विद दैट विद बाय होल्डिंग द गन एंड नियर द टाइगर्स carcass and that he could do the actual killing. और ऐसा लगना चाहिए उनके फोटोग्राफ में कि एक्चुअल में वो ऑफिसर ही उस टाइगर को किल कर रहे हैं। बट द महाराजा रिफ्यूज फॉर दिस ऑल्सो, लेकिन महाराजा उस फोटोग्राफी के लिए भी मना कर देते हैं। एंड द महाराजा एंड द दीवान डेलिब्रेटेड ऑन द इशू। द महाराजा एंड दीवान वर डेलिब्रेटेड ऑन द इशू, क्योंकि उनका ये डेलिब्रेटेड मीन्स प्री प्लान। उनकी दीवान साहब जो उनके थे महाराजा और दीवान की जो
पहले से प्लानिंग थी उस इशू को लेकर. कौन सा इशू? किलिंग ऑफ 100 टाइगर्स एंड टू मेंटेन हेल्दी रिलेशंस विद द ब्रिटिश. लेकिन उन्हें साथ ही साथ ब्रिटिश ऑफिसर जो उनके एज अ गेस्ट जो वहाँ विजिट करना है प्रतिबंधपुरम में, उनके साथ उनको हेल्दी रिलेशंस भी मेंटेन करना है. एंड द महाराजा आस्क्ड अ फेमस ज्वेलरी कंपनी. देन व्हाट द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? He has to kill the 100 tigers also himself, and plus he has to manage his relations also, maintain his healthy relation with that British officer also. And for this he planned that he had gave some gift, some jewelry from Calcutta, like diamond rings for his wife. But what happened with it, him? Maharaja asked a famous jewelry company in Calcutta to send him the samples of some expensive diamond rings. और क्योंकि एज अ गेस्ट वो उन्हें इस तरह से डिसओबे नहीं कर सकते हैं, तो वो कुछ कैलकाटा से कुछ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स एज अ सैम्पल्स वो मंगवाते हैं उनकी वाइफ के लिए, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के लिए, कि शायद ये लेकर वो गिफ्ट लेकर वो यहाँ से चले जाएंगे खुश होकर. लेकिन जब वो कुछ सैम्पल्स भेजते हैं उसके साथ उसका उल्टा महाराजा के साथ का लॉस ही होता है. कैसे? बिकॉज इंस्टेड ऑफ फ्यू सैम्पल्स हिज वाइफ पुट ऑल द डायमंड रिंग्स विद हर. द महाराजा सेंट 50 rings to the British officer's good lady, expecting her to accept 1 or 2 rings and send the rest back. अब क्या प्लानिंग होती है महाराजा की? 50 रिंग्स वो हैं ब्रिटिश ऑफिसर्स की गुड लेडी, मतलब उनकी वाइफ को भेजते हैं, और वो सोचते हैं कि वो 1-2 रिंग्स उसमें से जो उन्हें पसंद आए वो रख सकती हैं एज अ गिफ्ट, एंड बाकी की जो है वो वापस भेज दें. बट शी टुक ऑल द रिंग्स, लेकिन वो सारी रिंग्स रख लेती हैं, एंड जो कि वर्थ 3 लाख रुपीज़ की होती है. अब वो उनको टाइगर क्या उसमें पड़ा, 3 लाख का वो उनके टाइगर्स जो 100 टाइगर्स थे वो 3 लाख का उनको लॉस हो गया उसके कंपेरिजन में. The Maharaja lost 3 lakh rupees but managed to retain his kingdom. Okay, retain means to keep. Retain means to keep or continue his kingdom. महाराजा के 3 लाख का लॉस हुआ, बट उन्होंने अपने किंगडम को कंटिन्यू किया, अपने किंगडम को मैनेज किया. विदिन 10 years द महाराजा मैनेज टू किल 70 टाइगर्स. और 10 years में के अंदर अंदर उन्होंने 70 टाइगर्स तक वो मार चुके थे, किल कर चुके थे 70 टाइगर्स. एंड द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम. और इस तरह से धीरे धीरे जब टाइगर्स को मारते गए तो जो पॉपुलेशन थी टाइगर्स की वो एक्सटिंक्ट मीन्स कम होती गई. एंड द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू गेट मैरिड. नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान, व्हाट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस महाराजा? That first plan is that he just make their guest go back. And now second problem is that they plan to get married to a girl from a royal family belonging to a state with a large tiger population. Okay, now second planning of Diwan Sahib and Maharaja is that Maharaja want to marry a girl, marry in only that state which is having a large tiger population. अब वो एक मैरिड शादी सिर्फ उसी स्टेट में करेंगे जहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी. जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. Okay, अब जब भी वो अपने ऐसा स्टेट मिलता है उनको और ऐसे स्टेट में वो जाते हैं, वहाँ पे मैरिड भी करते हैं. ही गॉट मैरिड एंड जब भी वो अपने फादर इन लॉ के यहाँ विज़िट करने जाते हैं तो वहाँ पे हर बार जब भी जाते हैं 5 or 6 टाइगर्स को वो किल करके आते हैं. सो नाउ लेट्स सी, जस्ट रीड द चैप्टर फ्रॉम द गिवन PDF and let me know in the evening class that what other plannings would planned by this Maharaja of Pratibandhpuram to kill 100 tigers, whether he killed or not, or how many tigers he killed, and what happened with him, whether he was killed by the 100 tiger or he saved himself. Okay, so just read the chapter carefully. Thank you.